Hello, good morning to all BSc Nursing second year. So today I am here to present dialysis. Today we will discuss about the dialysis. Okay, dialysis. Dialysis is what? Dialysis is the procedure used to correct fluid and electrolyte imbalance and to remove waste product in renal failure. Sorry, as you know, the function of kidney. When your kidney are healthy, they can clean your blood, and they also make hormones that keep your bones strong and your blood healthy. When your kidney fail, you need treatment to replace the work your kidney used to do. So unless you have a kidney transplant, you will need to a treatment called dialysis. Okay, means agar means, as you know, when your kidney functions stop, then क्या होता है कि हम डायलिसिस करवाते हैं. ठीक है, डायलिसिस अगर हमारा रीनल ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है. ओके, सो what dialysis can what dialysis can do or what can't do. जो आपका डायलिसिस है वो क्या कर सकते हैं? वेस्ट रिमूवल एंड फ्लूइड रिमूवल एंड डू नॉट करेक्ट द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द kidney. Hence the dialysis is not a cure for kidney failure. It means in dialysis we can only remove the waste product or fluid. We can't correct the endocrine functions of the kidney. Okay, so this is not a permanent treatment of kidney failure patient. Clear? There are two types of dialysis. First one is hemodialysis and the second one is peritoneal dialysis. In hemodialysis means blood. Hemo simply means blood, and dialysis meaning to pass through. It removes nitrogen waste product, excess fluid and electrolytes from the blood by means of artificial kidney. Means there are two main types of dialysis, and both types filter your blood to rid your body of harmful waste, extra salt and water. So first one is hemodialysis and the second one is peritoneal dialysis. In hemodialysis use a machine. Okay, uses a machine and it is a sometimes called an artificial किडनी. हम आर्टिफिशियल किडनी इसको क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये हमारा क्या कर रही है, ओरिजिनल नहीं है ये. आर्टिफिशियली हम क्या कर रहे हैं, ब्लड को क्या कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं. सो यू यूजुअली गो टू अ स्पेशल क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट सेवरल टाइम्स और वीक. ओके, क्लियर. नेक्स्ट इज पेरिटोनियल डायलिसिस. पेरिटोनियल dialysis is okay. So peritoneal dialysis uses the lining of your abdomen called the peritoneal membrane to filter your blood. मतलब दोनों का काम क्या है? ब्लड को क्या करना? फिल्टर करना. क्लियर. So in hemodialysis nearly 90% of all dialysis patient receive hemodialysis, and peritoneal dialysis approximately 10 to 15% patient are receiving peritoneal dialysis. Okay, so how long does hemodialysis take? कितने तक हम वो करवा सकते हैं? ठीक है, हीमोडायलिसिस यूजुअली द डन 3 times a week. मीन्स वीक में हम 3 times क्या करवा सकते हैं? हीमोडायलिसिस करवा सकते हैं. और ट्रीटमेंट लास्ट फ्रॉम 2 to 4 hours. इट टेक्स 2 to 4 hours. Okay, so during treatment patient can read, write, sleep, talk or watch TV also, because this is a long procedure, 2 to 4 hours, and during between that the patient can also read, write and sleep. मीन्स अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है कि टीवी वगैरह की फैसिलिटीज़ होती है डायलिसिस वार्ड में. तो पेशेंट क्या कर सकता है? टीवी देख सकता है, अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, साथ साथ उसका डायलिसिस का प्रोसीजर भी चलता रहता है. ओके,
Clear? So, how dialysis occur? Dialysis machine is made up of series of membrane that act as filter and a special fluid called dialysate, and the membrane filter waste product from your blood which are passed into the dialysis fluid. Okay, and this is caused by the rapid change in the blood fluid level that occur during the treatment. So these are the process of dialysis. Clear? Then these are the equipment. This is dialyzer. जैसे हमने अभी डिस्कस किया dialyzer क्या करता है आपका, ठीक है. तो dialyzer, then dialyzer क्या होता है आपका, और dialyzer are hollow fiber artificial kidney that contain thousands of tiny tubules that act as semi permeable membrane. ओके, डायलाइज़र क्या होता है आपका, ये आर्टिफिशियल किडनी होती है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी. इसका क्या काम होता है, जो हमारा ब्लड होता है, जो ब्लड थ्रू द ट्यूब्यूल्स वाइल अ सॉल्यूशन सर्कुलेट्स अराउंड द tubules and the exchange of waste from the blood to the dialysate occur through the semi permeable membrane of the tubules. Okay, so dialyzer क्या होता है आपका, dialyzer is a often referred to as an artificial kidney, as we have already discussed. Its function is to remove the excess waste and fluid from the blood when the patient's kidney cannot longer perform their task. So dialyzer are made of thin fibrous material. Then डायरेक्शन क्या होता है आपका, जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड एंड डायलिसिट फ्लो इन द आर्टिफिशियल किडनी. द ब्लड फ्लो इन द वन डायरेक्शन एंड द डायलिसिट फ्लो इन द अपोजिट. ओके, क्लियर? सो यू कैन सी इन द पिक्चर्स. यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अपोजिट में हो रहा है ना आपका, यहाँ से ब्लड इन हो रहा है और यहाँ से आपका क्या हो रहा है, ब्लड आउट हो रहा है. देन कंसंट्रेशन फ्लो ऑफ डायलिसिट एंड ब्लड. ओके, so physiological principle of dialysis. There are three principle of dialysis. First one is osmosis, diffusion and ultra filtration. So these are the physiological principle of dialysis. Okay, so dialysis क्या होता है आपका, जो dialysis works on the principle of the diffusion of solutes and ultrafiltration of fluids across a semi-permeable membrane. So blood flow by one side of a semi-permeable membrane and a dialysate or special dialysis fluids flow by the opposite side. Okay, so diffusion is a movement of solutes from an area of the greater concentration to the area of lower concentration. ठीक है, in renal failure urea, creatinine, uric acid and electrolytes move from the blood to the dialysate with the net effect of lowering their concentration in the blood. Clear? Then आपका आता है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एन एरिया ऑफ लेसर देन एन एरिया ऑफ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स. तो इसमें क्या होता है आपको, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज एडेड टू द डायलिसिंग सॉल्यूशन एंड creates an osmotic gradient across the membrane to remove excess fluid from the blood. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी बॉडी में excess fluid है वो हो रहा है आपका remove हो रहा है through this membrane. Then ultrafiltration. Ultrafiltration is defined as water moving under high pressure to an area of lower pressure, and this process is much more efficient as water removal than osmosis. Ultrafiltration क्या होता है आपके, it is accomplished by applying negative pressure or suctioning force to the dialysis membrane. Then
आपका होता है वेस्कुलर एक्सेस ऑफ हीमोडायलिसिस। सो वेस्कुलर एक्सेस ऑफ हीमोडायलिसिस, ये क्या होता है आपका जो हीमोडायलिसिस एक्सेस और वेस्कुलर एक्सेस is a way to reach the blood for hemodialysis, and the access allow blood to travel through soft tubes to the dialysis machine, where it is cleaned as it is passes through a special filter that is called a dialyzer, and the access is placed by a minor सर्जरी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जो एक्सेस टू द पेशेंट वेस्कुलर सिस्टम मस्ट बी स्टेबलाइज टू अलाउ ब्लड टू बी रिमूव क्लीन and return to the patient vascular system. There are several types of access are available. First one is fistula, graft. Okay, so we will discuss one by one. Fistula ये क्या होता है आपका मोर परमानेंट एक्सेस। इसमें क्या होता है आपका जो फिस्टुला इज अ ब्लड वेसल्स मेड वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर बाय अ सर्जन टू हैंडल द नीडल्स दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो आउट टू एंड रिटर्न फ्रॉम अ डायलिसिस मशीन। सो मोस्ट पीपल कैन गो होम आफ्टर आउट पेशेंट सर्जरी। ठीक है, ये फिस्टुला क्या होता है हमारा परमानेंट होता है, जिनको मीन्स डेली क्या करवाना, जिनका मतलब वीकली डायलिसिस करवाना होता है, तो उनका क्या हो जाता है मीन्स वहाँ पे सर्जरी के थ्रू हम फिस्टुला बनाते हैं वहाँ पे। तो ये क्या है आपका द आर्टिफिशियल सेगमेंट ऑफ द फिस्टुला इज यूज्ड फॉर आर्टीरियल फ्लो एंड द वीनस सेगमेंट फॉर री इन्फ्यूजन ऑफ द डायलाइज्ड ब्लड। ओके, देन जो आपको फिस्टुला होता है इट टेक्स 4 to 6 वीक टू मैच्योर बिफोर इट इज़ रेडी फॉर यूज, एंड दिस गिव्स टाइम फॉर हीलिंग एंड फॉर द वीनस सेगमेंट ऑफ द फिस्टुला टू dilate. Okay, so in this condition the patient is encouraged to perform exercise to increase the size of these vessels, that is squeezing a rubber ball or form an fistula। ठीक है, ताकि क्या हो सके आपके जो वेसल्स का साइज क्या हो सके इंक्रीज हो सके। तो ये मैच्योर होने के लिए कितना टाइम लेता है 4 to 6 वीक। नाउ द ग्राफ्ट। सो ग्राफ्ट क्या होता है आपका एन आर्टीरियोवेनस ग्राफ्ट कैन बी क्रिएटेड बाय सबक्यूटेनियसली इंसर्टिंग आ semi biologic or synthetic graft material between an artery or vein. There are some indications when the patient vessels are not suitable for a fistula, and graft are usually placed in the forearm, upper arm or upper thighs। अब आप बोल रहे होंगे कि इसमें क्या होगा। सो देयर आर द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ्ट एंड फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है आपका जो एन एवी फिस्टुला इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द पेशेंट आर्टरी एंड वन ऑफ देयर नियर बाई वेन्स। ठीक है, फिस्टुला में क्या हो रहा है आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है किसके बीच में, पेशेंट आर्टरी एंड वन ऑफ द देयर नियर बाई वेन्स। और ग्राफ्ट क्या है आपका, ग्राफ्ट इट इज एन इनडायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द आर्टरी एंड वेन्स। क्लियर, जो आपका फिस्टुला है उसमें आपका क्या हो रहा है डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है किसमें, बिटवीन द पेशेंट आर्टरी एंड वन ऑफ द नियर बाई वेन्स। और ग्राफ्ट में क्या हो रहा है आपका indirect connection between the artery and vein. So most commonly a plastic tube is used, but donated cadaver artery or veins can also be used. Okay, so here you can see an internal arteriovenous fistula is created by a side to side anastomosis of the artery and vein, and a graft can also be stabilized between the artery and vein. So only difference is there is direct connection or in this indirect connection. So जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हो ये हमारी पूरी क्या है डायलिसिस मशीन है और ये आपका पेशेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हमारा ये ब्लड है वो कैसे यहाँ पे जो हमारे एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे रिमूव कर रहा है। ओके,
Peritoneal dialysis, peritoneal membrane serve as the semi-permeable membrane for dialysis. अब तक हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे? हीमोडायलिसिस. Now we will discuss about the peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis is treatment that uses the lining of your abdomen, that is belly area जहाँ पे आपका होता है, called your peritoneum, and a cleaning solution called dialysate to clean your blood, and dialysate absorb waste and fluid from your blood using your peritoneum एज अ फिल्टर. ओके, आपको डिफरेंस समझ में आ गया हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में. हीमोडायलिसिस में क्या हो रहा था आपका, ठीक है, इन हीमोडायल ओके, तो हीमोडायलिसिस में क्या हो रहा था आपका, हीमोडायलिसिस क्या करता है आपका, आपको पता है देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ डायलिसिस. फर्स्ट वन इज हीमोडायलिसिस एंड सेकेंड वन इज पेरिटोनियल डायलिसिस. हीमोडायलिसिस क्या है आपका, यूजेज अ मशीन and a filter to remove waste product and water from the blood. Okay, इसमें क्या हो रहा है, मशीन का यूज़ हो रहा है. देन पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है आपका, पेरिटोनियल डायलिसिस यूज्ड अ फ्लूइड that is placed into the patient abdominal cavity to remove waste product and fluid from the body. Okay, so in peritoneal dialysis it involves repeated cycle of instilling dialyzing solution into the peritoneal cavity through a catheter into it. Okay, so आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे क्या हो रहा है. एंड प्रिंसिपल ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका पेरिटोनियल डायलिसिस में, ड्यूरिंग द पेरिटोनियल डायलिसिस इज अ क्लिनजिंग फ्लूइड. ठीक है, जो आपका क्या होता है, डायलसेट इज सर्कुलेटिंग ट्यूब सर्कुलेटेड थ्रू अ ट्यूब दैट इज कैथेटर. ओके, जैसा आप यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हो, इनसाइड द पार्ट ऑफ यूर एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी भी बोलते हैं. जो आपका डायलसेट होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन यूर एब्डोमिनल लाइनिंग दैट इज पेरिटोनियम, एंड देन देयर इज ड्रॉबैक आउट ऑफ योर बॉडी एंड discarded. So there are two common types of PD. PD is peritoneal dialysis. First one is CAPD. CAPD क्या होता है आपका, continuous cycling continuous ambulatory peritoneal dialysis. ठीक है, which stands for continuous ambulatory peritoneal happens throughout the day at home or at work while the person goes about his or her daily life. Means for these methods you fill your abdomen with fluid and then go about your daily routine. ओके, जो आपका हीमोडायलिसिस है उसमें अब आप डेली रूटीन नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, यू डेली रूटीन कर until it is time to drain the fluid and you are not hooked up to anything during the dwell period and you do not need a machine. इसमें आपको क्या है, मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, सो इसके टाइमिंग क्या है, यूजुअली अबाउट 4 to 6 hours and you will need to 3 to 4 exchange each day and you will have a longer dwell time at night while you sleep. Okay, so between 1.5 and 3 liters of fluid is run each time for 4 times a day and exchanging for the fluid from the previous exchange. ठीक है, this is CAPD. नेक्स्ट इज आपका APD. ये क्या होता है आपका, ऑटोमेटिक पेरिटोनियल डायलिसिस. इसमें क्या होता है आपका, इन विच द डायलसेट सॉल्यूशन इज चेंज्ड बाय अ मशीन एट नाइट वाइल यू आर स्लीप. ठीक है, उसमें क्या हो रहा था आपका, जो CAPD था उस पर आप वो डे टाइम में भी कर सकते हो और उसमें आपको खुद क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. लेकिन इसमें क्या होता है,
चेंज किससे होता है आपका, मशीन। और ये कब कर सकते हैं आप, ओनली एट द नाइट वाइल यू आर स्लीप, बिकॉज दिस मशीन विल एक्सचेंज 8 to 12 लीटर्स ओवर 8 to 10 hours. ओके, क्लियर। देन इंडिकेशंस क्या क्या हैं आपके हीमोडायलिसिस की और पेरिटोनियल डायलिसिस। दीज आर द इंडिकेशन। हीमोडायलिसिस क्लिनिकल मीन्स अगर फ्लूइड ओवरलोडेड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू डायरेटिक्स एंड यूरेमिक कन्वर्जन्स। यूरेमिक कन्वर्जन्स क्या होता है आपका, द कन्वर्जन्स वन ड्यू टू यूरेमिया और रिटेंशन इन द blood of material that should have been expelled by the kidney. Okay, so uremia is the condition of having high level of urea in the blood. और यूरिया क्या होता है आपका, यूरिया इज द वन ऑफ द मेजर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक कोमा एंड convulsions did not correlate with physical finding. Okay, so other is persistent dyspnea, vomiting और रेस्टलेसनेस अगर हो रही है, एंड साइन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और अगर बायोकेमिकल अगर वहाँ पे कुछ जैसे ARF, CRF, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर इन पेरिटोनियल डायलिसिस सेम एज हीमोडायलिसिस। और व्हेन द हीमोडायलिसिस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ वेस्कुलर एक्सेस, ठीक है, तो हम क्या करा सकते हैं फिर पेरिटोनियल डायलिसिस। स्मॉल चिल्ड्रन अगर हाइपोटेंशन है, unstable to cardiovascular and respiratory status. So, and patient willingness, motivation and ability to perform dialysis at the home. अगर पेशेंट की क्या है वहाँ पे विलिंगनेस है, अगर मोटिवेशन है, तो हम क्या करवा सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस। जब आपको पता है अगर किसी भी चीज़ का हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या क्या हो रहा है आपका, हाइपोटेंशंस हो रहा है, मसल्स क्रैम्प्स आ रहे हैं, क्लॉट फॉर्मेशन होता है आपका, सेप्टिसीमिया होता है। सेप्टिसीमिया आपको पता है क्या होता है, हेपेटाइटिस एंड डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ओके, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम ये किसकी वजह से होता है आपका, ये डायलिसिस की वजह से ही होता है। सो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम इज डिफाइंड एज अ clinical syndrome of neurologic deterioration that is seen in patient who undergo the hemodialysis, and it is more likely to occur in patient during or immediately after the first treatment, but can occur in any patient who receive the dialysis. Okay, clear। क्या होता है आपका डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, किसकी वजह से होता है आपका, हीमोडायलिसिस की वजह से। क्या है आपका, इसमें न्यूरोलॉजी का डिटोरिएशन हो जाता है, ठीक है, जो पेशेंट क्या कराते हैं आपका हीमोडायलिसिस। देन पेरिटोनियल डायलिसिस में आपका एग्जिट साइट इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है, लो बैक पेन, प्रोटीन लॉस हो सकता है आपका, एटलेक्टेसिस एंड निमोनिया कैन ऑल्सो अकर। ओके, क्लियर। So now we will discuss about the nursing role. Nursing role को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, आप सबको पता है आपका रोल क्या है। सो नर्सिंग केयर बिफोर द डायलिसिस, हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ भी चीज़ होती है आपको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक कंसर्न, ठीक है, और इन्फॉर्म कंसर्न, देन एक्सप्लेनेशन। आपको पता है अगर वेन एवर you did any procedure you have to explain to the patient or family members. Then ask the patient to wait and check weight, vitals, BP is more important at the beginning and at least every 30 minutes में आपको क्या करना है, BP लेना है पेशेंट का, ठीक है, एंड चेक फॉर कैनुला एंड फिस्टुला फॉर पेटेंसी एंड पाल्पेट फॉर द थ्रिल एंड ऑस्कल्टेशन ऑफ ब्रूइट्स एंड विदहोल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ऑन द डे ऑफ, ठीक है, हीमोडायलिसिस एंड एश्योरेंस लेना भी है उनका। देन
ये तो था आपका बिफोर डायलिसिस। देन केयर ऑफ ड्यूरिंग डायलिसिस, आपको सबसे पहले क्या करना है, रेगुलर ऑब्जर्वेशन करना है, एनी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, ठीक है। चेक एंड रिकॉर्ड वाइटल्स इन 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, उसके वाइटल्स साइन क्या करने, वाइटल्स चेक करने हैं। सर्व फूड्स एज पेशेंट इंटरेस्ट, नॉट फॉर हाइपोटेंसिव प्रोन पेशेंट, क्लियर। सो ईच ट्रीटमेंट लास्ट फ्रॉम 2 to 4 आवर्स, आपको पता है कि प्रोसीजर कितना टाइम लेता है आपका, 2 to 4 आवर्स। एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट इज अलाउड टू रीड, राइट, स्लिप, टॉक और वॉच टीवी। सो बैक केयर एंड डाइवर्शनल थेरेपी भी देनी है पेशेंट को। इफ़ देयर इज़ एनी कॉम्प्लिकेशन देन वी शुड इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। देन द केयर आफ्टर डायलिसिस, आफ्टर डायलिसिस क्या केयर देनी है आपको, चेक एंड रिकॉर्ड वाइटल साइन, वेट मेज़र करना है आफ्टर हीमोडायलिसिस एंड टोटल अल्ट्रोफिल्ट्रेशन, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, रिकॉर्ड करने हैं। मेडिकेशंस देनी है एज ऑर्डर, अगर इफ़ कोई मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर रखी है तो एक्सप्लेन अबाउट द केयर नेसेसरी आफ्टर हीमोडायलिसिस, ठीक है। क्योंकि आफ्टर हीमोडायलिसिस पेशेंट क्या जाता है, घर जाता है, तो हमें उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है अबाउट केयर नेसेसरी। सो इन्फॉर्म द फैमिली एंड पेशेंट ऑफ डेट फॉर नेक्स्ट डायलिसिस, जैसे आपको पता है कि हीमोडायलिसिस क्या होता है, वीकली 3 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है, तो हमें उन्हें क्या करनी है, नेक्स्ट डेट इन्फॉर्म करनी है। एंड सेंड द पेशेंट होम और वार्ड, ओके। सो आपका जो क्लियर हो गया है, ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, ड्यूरिंग, बिफोर और आफ्टर डायलिसिस। नाउ द नेक्स्ट इज केयर ऑफ आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, जो हमने जो परमानेंट फिस्टुला बनाया रहता है उसकी केयर कैसे करनी है। सो मेक श्योर दैट नर्सेज और डॉक्टर चेक द एक्सेस बिफोर एंड आफ्टर ईच ट्रीटमेंट। जब भी पेशेंट आपके पास आता है, ये नहीं है कि आपको सीधा डायलिसिस स्टार्ट कर देना है, पहले वी हैव टू चेक द फिस्टुला ऑफ ईच ट्रीटमेंट बिफोर एंड आफ्टर, and uses the excess site only for dialysis, and keep excess clean at all the time। जिस साइड आपका फिस्टुला है उस साइड आपको क्या नहीं करना है, डोंट पुट अ बीपी कफ ऑन एक्सेस आर्म, एंड डू नॉट वेयर ज्वेलरी और टाइट क्लोथ ओवर एक्सेस साइड, ठीक है। एंड आपको क्या नहीं करना है, उस साइड से क्या नहीं करना है, डू नॉट स्लीप विद योर एक्सेस आर्म अंडर हेड और बॉडी, एंड डू नॉट लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स और पुट प्रेशर ऑन एक्सेस आर्म, क्लियर। तो हमें ऐसे क्या करनी है, ये केयर ऑफ आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। थैंक यू, thank you class. If you are having any doubt then you can ask. So thank you so much for listening.